اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس تھرڈ ایئر۔ بیٹا آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے مختتم شرح فنی استبدال، مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیٹیوشن۔ مساوی پیداوار کے خطوط کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ مساوی پیداوار کا خط گرتے ہوئے مبدہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو آئسو کوانٹ کرو ہوتے ہیں وہ سیم اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح انڈیفرنس کرو ہوتے ہیں۔ ان کی بھی جو شیپ ہوتی ہے وہ کنویکس ٹو دا اوریجن ہوتی ہے، یعنی مبدہ کی طرف محدب ہوتے ہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی ایک عامل کی ایک زائد اکائی کاروبار میں لگانے کے لیے دوسرے عامل کی کتنی اکائیاں کاروبار سے نکالنی پڑیں گی۔ یعنی اگر آپ نے ایک چیز کی کوانٹٹی کو بڑھانا ہے تو آپ کو دوسری چیز کی کوانٹٹی کو کم کرنا پڑے گا، بشرط یہ کہ کل پیداوار میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ جیسے ہم انڈیفرنس کرو میں کہتے تھے کہ اگر ہم نے ایک چیز کی کوانٹٹی کو کم کرنا ہے اور دوسری کو بڑھانا ہے لیکن ہمارا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ چینج نہ ہو، اسی طرح اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک عامل کی اکائی کو کم کر کے دوسرے عامل کی اکائی کو زیادہ لگائیں لیکن پروڈکشن میں کوئی چینج نہ آئے، پیداوار میں کوئی چینج نہ آئے۔ ماہرین کسی ایک عامل کی اکائی کو دوسرے عامل کی اکائیوں میں بدلنے کی اس شرح کو مختتم شرح فنی استبدال کہتے ہیں، مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیٹیوشن۔ اور مساوی پیداوار کے خط کا جھکاؤ ایک عامل کو دوسرے عامل کی اکائیوں میں بدلنے کی اس شرح کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے: مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیٹیوشن measures the amount of one factor for which a unit of another factor will just substitute with no loss in output۔ یعنی مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیٹیوشن ہے کیا کہ آپ ایک فیکٹر آف پروڈکشن کو زیادہ لگا رہے ہو کسی دوسرے فیکٹر آف پروڈکشن کو کم کر کے، لیکن آپ کی پروڈکشن میں کوئی چینج نہیں آ رہا۔ اسے اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے MRTS مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیٹیوشن KL is equal to DK/DL۔ مختتم شرح فنی استبدال کے اصول کی وضاحت کے لیے درج ذیل گوشوارہ تیار کیا جاتا ہے جس میں محنت اور سرمایہ کی اکائیوں کو 3 ایسے جوڑے درج کیے گئے ہیں جو مساوی پیداوار دیتے ہیں، یعنی ایکول پروڈکشن، مساوی پیداوار ایکول پروڈکشن۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر گوشوارہ ہے، گوشوارے میں پہلے کالم میں ہے عاملین کے جوڑے، دوسرے کالم میں ہے محنت کی اکائیاں، تھرڈ ون میں ہمارے پاس ہے سرمایہ کی اکائیاں۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو پہلا کالم ہے اس میں ہمارے پاس عاملین کے جوڑے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلا جوڑا ہمارے پاس اس میں محنت کی 1 اکائی ہے، سرمایہ کی 4 اکائیاں ہیں۔ دوسرے جوڑے میں ہمارے پاس محنت کی 2 اکائیاں ہیں اور سرمایہ کی بھی 2 اکائیاں، یعنی ہم نے محنت کی 1 اکائی بڑھائی ہے تو سرمایہ کی ہمارے پاس 2 اکائیاں کم ہوئی ہیں۔ اسی طرح تیسرے جوڑے میں ہم نے پھر محنت کی 1 اکائی بڑھائی ہے اور ہمارے پاس سرمایہ کی پھر کتنی اکائیاں کم ہوئی ہیں؟ 1 اکائی کم ہوئی ہے۔ یعنی پہلے ہماری 2:1 تھی، 2 اکائیاں ہم نے چھوڑی 1 اکائی لینے کے لیے، پھر ہم نے 1 اکائی چھوڑی 1 اکائی لینے کے لیے، اور کل پیداوار ہماری دیکھیں تھرو آؤٹ سیم ہے 50، اس میں کوئی چینج نہیں آیا۔ اب اس کی ہم ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ گوشوارے میں عاملین کا جب دوسرا جوڑا کاروبار میں لگایا جاتا ہے تو محنت کی 1 زائد اکائی جو ہے وہ اس کی خاطر سرمایہ کی 2 اکائیاں لگائی جاتی ہیں، کاروبار سے نکالنی پڑتی ہیں، جبکہ کل پیداوار میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، آپ کی ٹوٹل پروڈکشن میں کوئی چینج نہیں آتا۔ جبکہ تیسرے اشتراک میں یعنی تیسرے جوڑے میں، تیسرے کمبینیشن میں دیکھیں محنت کی 1 زائد اکائی کے لیے سرمایہ کی صرف 1 اکائی کو چھوڑا گیا ہے۔ اس طرح مختتم شرح فنی استبدال گرتی چلی گئی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے درج بالا ڈائیگرام تیار کی گئی ہے۔ یہ ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایکس ایکسس پر محنت کی اکائیاں ہیں اور وائی ایکسس پر ہمارے پاس سرمایہ کی اکائیاں ہیں۔ محنت کی جب ہماری 1 اکائی ہے تو سرمایہ کی ہمارے پاس 4 ہیں، اسی طرح محنت کی 2 اکائیوں پر سرمایہ کی ہمارے پاس 2 ہو جاتی ہیں، اور محنت کی 3 اکائیوں پر سرمایہ کی 1 اکائی ہے۔ EFG یہ ہمارے پاس پوائنٹس آ جاتے ہیں، ان پوائنٹس کو ملائیں ہمارے پاس کون سا کرو آ جائے گا؟ ہمارا آئسو کوانٹ کرو آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ہم دیکھیں ہمارے پاس جو گوشوارے کی وضاحت ہے، ڈائیگرام میں OL خط کے ساتھ محنت کی اکائیاں اور OK خط کے ساتھ سرمایہ کی اکائیاں ظاہر کی گئی ہیں۔ یہ جیسے پیچھے ڈائیگرام میں ہمارے پاس شو کیا گیا ہے۔ گوشوارے کے مطابق اور سرمایہ کی اکائیوں کے مختلف جوڑوں کو مد نظر رکھتے ہوئے EF اور G نکات حاصل کیے گئے ہیں، EF اور G نکات، جنہیں آپس میں ملا کر مساوی پیداوار کا خط یعنی آئسو کوانٹ تیار ہو گیا ہے۔ اس خط کے ساتھ جب نقطہ E سے نقطہ F کی جانب حرکت کی جاتی ہے، نقطہ E سے
नुक्ता एफ की जानिब हरकत की जाती है तो सरमाए की 2 इकाइयां छोड़कर आप सरमाए की 2 छोड़ रहे हैं तो ई से एफ ऐसे वर्टिकल देखें चेंज इन एल लिखा हुआ है, यानी आपने लेबर की 2 छोड़ी है, और इधर से जब आप एफ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी आपने मेहनत की जो है वो 1 इकाई हासिल करने के लिए आपने सरमाए की कितनी छोड़ी है, 2 इकाइयां छोड़ी हैं। छोड़कर मेहनत की एक जायद इकाई कारोबार में लगाई जाती है, जबकि कुल पैदावार कितनी रहती है, वो 50 ही रहती है। और इस तरह मेहनत के लिए सरमाए की मुख्ततिम शरह फनीस तब्दाल की सूरत ये होगी चेंज इन के ओवर चेंज इन एल, यानी आपने कैपिटल की सरमाए की कितनी छोड़ी, 2, और आपने ली कितनी मेहनत की, 1, लेबर की 1 ली, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन जब नुक्ता एफ से नुक्ता जी की तरफ हरकत की जाती है, नुक्ता एफ से नुक्ता जी की तरफ, तो मुख्ततिम शरह फनीस तब्दाल जो आपकी वो हो जाएगी चेंज इन के ओवर चेंज इन एल 1 बाय 1। इधर देखें आपने उधर से 1 छोड़ी और उधर से एडिशनल भी 1 ली। इस तरह मुख्ततिम शरह फनीस तब्दाल गिरती चली जाती है, जिसे तकलीली मुख्ततिम शरह फनीस तब्दाल का नाम दिया जाता है। और मुसावी पैदावार का ख़त आई क्यू जो है वो मुबद्दा की जानिब मुहद्दिब होता है, यानी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर हम सरमाए की इकाइयों में कमी के बायस पैदावार में कमी को के इंटू एम पी के, लॉस ऑफ के इंटू एम पी के से जाहिर करें, और मेहनत की इकाइयों में इजाफे की वजह से पैदावार में इजाफे को गेन ऑफ एल इंटू एम पी एल। अब लॉस से मुराद है आप जो लॉस कर रहे हैं कैपिटल की जो क्वांटिटी है, एम पी के यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और इसी तरह गेन ऑफ एल यानी एडिशनल लेबर लगाने से जो आपकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, और इंटू एल इंटू आप करेंगे एम पी एल यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसे जाहिर करें। और पैदावार दोनों सूरतों में बराबर हो तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है चेंज इन एल इंटू एम पी एल इज इक्वल टू चेंज इन के इंटू एम पी के। बस हम कह सकते हैं कि मुख्ततिम शरह फनीस तब्दाल जो है एम आर टी एस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के इंटू एल, यानी आपने के की छोड़ी है और एल की एक्स्ट्रा ली है, इज इक्वल टू माइनस एम पी एल ओवर एम पी के इज इक्वल टू माइनस डी के ओवर डी एल। अब माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि आपका जो कर्व है वो नेगेटिव स्लोप है। ठीक हो गया। मुख्ततिम शरह फनीस तब्दाल का निसार मुसावी पैदावार के ख़त की पोजीशन पर होता है, लिहाजा इस ज़मन में ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये ख़त एल या के दोनों में से किसी महवर को भी नहीं छूता। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व का कहा था, ना वो एक्स एक्सिस को छुएगा ना वाई एक्सिस को छुएगा। इसी तरह जो आइसोक्वांट कर्व है, ना वो एल एक्सिस एल वाले साइड को टच करेगा ना ही के वाली साइड को। अगर वो एल वाली साइड को टच करता है इट मींस वो सारे लेबर यूज कर रहा है, और अगर के वाली साइड को टच करता है तो इट मींस वो सारे कैपिटल यूज कर रहा है। किसी एक आमिल की मदद से ही शय की कुछ मिकदार पैदा की जा सकती है, जो कि मुमकिन नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि मतलूबा शय की मिकदार पैदा करने के लिए दोनों वामिल की कुछ इकाइयाँ दरकार होती हैं। मजीद वजाहत के लिए दर्ज झैल शक्ल तैयार की जाती है। अब इस शक्ल में आप देखें हमारे पास जो है वो इस शक्ल में शय की 100 इकाइयाँ पैदा करने के लिए मेहनत और सरमाए की दोनों अवामिल की इकाइयाँ दरकार होती हैं। लिहाजा मुसावी पैदावार के ख़त IQ1 की पोजीशन ज़्यादा सही है। IQ2 और IQ3 से मुराद है कि आप सारा लेबर ही लगा रहे हो, लेकिन शय की 150 और 200 इकाइयाँ पैदा करने के लिए सिर्फ मेहनत की इकाइयों को ही कारोबार में लगाया जा सकता है, जबकि सरमाए की कोई इकाई कारोबार में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, लिहाजा IQ2 और IQ3 की पोजीशन सही नहीं है, क्योंकि वो एल एक्सिस को छू रहे हैं। इसका मतलब है आप सारी की सारी लेबर की क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है, आप एक ही को लेकर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है मुसावी मुसारिफ के खतूत, आइसो कॉस्ट कर्व। फर्म के आमलीन का मौजू तरीन इश्तराक यानी जो है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मालूम करने के लिए मुसावी पैदावार के खतूत के साथ साथ वसाइल के ख़त की ज़रूरत भी पेश आती है। इस ख़त की मदद से आमलीन पैदाइश की वो मुख्तलिफ मिकदारें मालूम की जा सकती हैं जो कि फ़र्म के महदूद वसाइल से हासिल की जा सकती हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए। फ़र्म के मुसावी मुसारिफ का ख़त खींचने के लिए एक फ़र्म के वसाइल यानी कुल रकम जो कि आमलीन की मुख्तलिफ इकाइयाँ हासिल करने के लिए दरकार होती है, इसको पेश नज़र रखना पड़ता है। और इस तरफ आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों की शरह भी, एक तो कि फ़र्म के पास कितने वसाइल कितना पैसा मौजूद है कि वो इन इकाइयों को अफोर्ड करे, और दूसरा कि आमलीन पैदाइश को मुआवजे कितने पे करने हैं। मसलन अगर फ़र्म के कुल वसाइल कितने हैं 10,000, फ़र्म के पास कुल लिमिट कितनी है 10,000, और मेहनत की इकाई का मुआवजा कितना है 500 रुपये, आपको एक मजदूर हायर करने का कितना देना है 500 रुपये, तो कुल रकम खर्च करने से मेहनत की 20 इकाइयाँ हासिल की जा सकती हैं। आप 10,000 अगर पूरी मेहनत पे लगा दो तो आप
आप मेहनत की कितनी इकाइयाँ हासिल कर सकते हो, 20। जबकि सरमाए की एक इकाई का मुआवजा अगर 1000 रुपया हो तो कुल वसाइल के पेश नज़र सरमाए की 10 इकाइयाँ कारोबार में लगाई जा सकती हैं। अगर आप सरमाए की एक इकाई का मुआवजा 1000 रुपये है तो अगर आप 10,000 जो है वो सारे सरमाया पर खर्च करते हो तो आप सरमाए की 10 इकाइयाँ परचेज कर सकते हो। बस मेहनत की 20 और सरमाए की 10 इकाइयों के बाहमी मिलाप से ए बी ख़त फर्म के मुसावी मुसारिफ का ख़त यानी आइसो कॉस्ट लाइन तैयार हो जाती है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पेज पे देखें, ये डायग्राम है जिससे ए बी जो है आइसो कॉस्ट लाइन है। ए जो है वो पॉइंट 10 पर है और बी जो है वो पॉइंट 20 पर है। इट मीन्स कि अगर आप सारे का सारा पैसा सरमाए पर लगाते हो तो आप उसकी 10 इकाइयाँ परचेज कर सकते हो और अगर सारे का सारा पैसा लेबर पर लगाते हो तो उसकी 20 इकाइयाँ परचेज कर सकते हो। वजाहत, शक्ल में मुसावी मुसारिफ का ख़त ए बी ये जाहिर करता है कि मुइना वसाइल से यानी फिक्स्ड जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उससे फर्म मेहनत और सरमाए के कौन से मजमूए हासिल कर सकती है यानी कौन कौन से कम्बिनेशन हासिल कर सकती है। अगर इस ख़त पर नुक्ता ई लिया जाए, नुक्ता ई आपको नज़र आ रहा है, तो फर्म मेहनत की कितनी इकाइयाँ हासिल कर सकती है, 4 इकाइयाँ, और सरमाए की कितनी हासिल कर सकती है। अब 4 इकाइयों पर जो खर्च कितना आएगा, 2000 रुपये, क्योंकि एक इकाई कितने की है, 500 रुपये की, ठीक है। तो जिस पर 2000 रुपये लागत आती है, जबकि सरमाए की 8 इकाइयाँ हासिल करके 8000 रुपये खर्च किए जाते हैं। 8 और 2 को जमा कर लें तो पूरा 10 हो जाएगा और 10,000 ही फर्म के वसाइल हैं। और इस तरह कुली मुसारिफ जो है वो 10,000 रुपये बनते हैं जो कि फर्म के वसाइल के बराबर हैं। इसी तरह ए बी ख़त पर अगर नुक्ता एफ लिया जाए, एक तो ई कम्बिनेशन आप ले सकते हैं, दूसरा एफ कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। एफ कम्बिनेशन में क्या है, मेहनत की 12 इकाइयों पर 6000 रुपये खर्च होंगे। अगर वो 12 इकाइयाँ मेहनत की ले रहे हैं, एक इकाई 500 की है तो कितने खर्च होंगे, 6000। जबकि सरमाया की 4 इकाइयों पर कितने होंगे, 4000 खर्च होंगे। 6 और 4 को जमा करें तो 10,000 बन जाएगा। इस तरह दोनों आमलीन पर कुली मुसारिफ 10,000 रुपये होंगे। लिहाजा साबित हुआ कि ए बी ख़त के किसी भी नुक्ते से आमलीन का जो इश्तराक यानी कम्बिनेशन बनेगा, इस पर 10,000 रुपये ही खर्च होंगे, यानी कुल मुसारिफ बराबर रहेंगे। लिहाजा इसे मुसावी मुसारिफ के ख़त आइसो कॉस्ट लाइन का नाम दिया जाता है। फर्म के वसाइल में कमी बेशी या किसी आमिल की इकाइयों के मुआवजे में तब्दीली से मेहनत और सरमाए के मुख्तलिफ मजमूए तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा मुसावी मुसारिफ के खतूत का झुकाव जो है वो भी बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर फर्म के वसाइल 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएं, जबकि मेहनत और सरमाए की इकाइयों के मुआवजे में कोई तब्दीली ना आए, तो मेहनत पर तमाम रकम खर्च करने से 30 इकाइयाँ और सरमाए पर तमाम रकम खर्च करने से 15 इकाइयाँ कारोबार में लगाई जा सकती हैं, क्योंकि अब जो है फर्म के वसाइल 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गए। इस तरह मुसावी मुसारिफ का ख़त बदल कर क्या बन जाएगा, GH बन जाएगा। ये जो आपको नेक्स्ट डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, GH, ठीक है। इसमें आप अब ज़्यादा से ज़्यादा सरमाए की 15 हासिल कर सकते हैं और मेहनत की 30, तो G पॉइंट 15 पे है और H पॉइंट 30 पर है। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि इस तरह मुसावी मुसारिफ का ख़त बदल कर जज बन जाएगा। अब अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि फर्म के वसाइल में तो कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन मेहनत की इकाई का मुआवजा बढ़कर 1000 रुपये हो जाता है। अब वसाइल में अगर फ़र्ज़ करें तब्दीली नहीं आई, वसाइल 10,000 ही हैं, लेकिन मेहनत की इकाई का मुआवजा बढ़ गया, 1000 रुपये हो गया, जो पहले 500 रुपये था। जबकि सरमाए की इकाई के मुआवजे में कोई तब्दीली रद्दोबदल नहीं होता, तो मुसावी मुसारिफ का ख़त तब्दील होकर AC बन जाएगा, रोटेट कर जाएगा। AB से रोटेट करके कितना हो जाएगा, AC। पहले आप मेहनत की ज़्यादा इकाइयाँ परचेज़ कर पा रहे थे, लेकिन अब मेहनत की एक इकाई महंगी हो गई है तो आप मेहनत की कम इकाइयाँ परचेज़ कर पाओगे। सारे के सारे वसाइल भी अगर लगा दो तो मेहनत की 10 इकाइयाँ परचेज पर कर पाओगे। इसलिए अब जो कर्व क्या बन गया है, AC बन गया है। चूँकि L इंटू PL प्लस K इंटू PK इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट के बराबर इस तरह से है कि आप लेबर की कितनी इकाइयाँ लेते हो मल्टीप्लाई करो उसको उसकी प्राइस से, लेबर की प्राइस से। इसी तरह K से मुराद है कैपिटल की कितनी इकाइयाँ ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटल की प्राइस से, एक इकाई की प्राइस से, तो आपके पास आपकी कॉस्ट आ जाएगी जो फर्म की कॉस्ट लगेगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C/P डिवाइडेड बाय C/PL, और C/P डिवाइड को ख़त्म करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, PL/C हो जाएगा और PL/PK हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PL/PK आ जाएगा।